Anna Mohsana. Yes, Amma. Yeah. We welcome you and our dear brother. Where is brother? Saurabh. Saurabh is there. Yes. Yeah. Dear brother Saurabh, we welcome you. We thank you very much for your great support. Thank you so much, brother. Thank you, brother. Yes, it's your time. Please go ahead. Thank you. Praise the Lord. Yeah. We praise God for this time that God has given us. मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस समय के लिए जो हमारे जीवन में प्रदान किया गया. I'm sure you are all enjoying the study of Book of Acts. और मैं निश्चय जानता हूँ कि प्रेरितों के काम की पुस्तक का जो अध्ययन हो रहा है उसका आप लुत्फ उठा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है. I want to tell you, more than any of you, I am enjoying the study of Book of Acts now. लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप में से किसी से भी सबसे ज्यादा अगर कोई इसका आनंद उठा रहा है तो वो मैं खुद हूँ. Yes, I got the reply from Eva, Kali sister. She's kept it in the chatting box. Yes, as I understand that you're all enjoying as the Spirit of God is speaking to us through the meditation of the Book of Acts. और मैं ये चीज महसूस कर पा रहा हूँ जिस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता कर रहा है. हम लोग प्रेरितों के काम के इस पुस्तक के अध्ययन को आनंद पूर्वक ले रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है. I could clearly see that, particularly in the last session last week, the Spirit of God was very powerfully moving among us. God was speaking to us. और मैं इसको स्पष्ट देख पा रहा था कि पिछले सप्ताह परमेश्वर का आत्मा बड़े ही सामर्थ्य और प्रबल रूप से हमारे बीच में काम कर रहा था और हमारी समझाइश को बेहतर कर रहा था. Yeah, last time when I was speaking 1 or 2 times, my eyes became wet. और जब पिछले बार मैं बात कर रहा था तो मेरी आंखें एक दो बार नम हुई थी. And I could see that reaction from you also through the chat box. Some of you texted few words. और मैंने ये भी देखा कि आप में से कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में अपनी सहमति को प्रकट कर रहे थे. All praise and glory be to God. और सारा आदर महिमा केवल परमेश्वर को ही मिले. I want to admit or I want to confess with you that I am also learning with you. We are all equal. I am also a student like you. और मैं आपके सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं और अंगीकार करना चाहता हूं कि मैं भी एक विद्यार्थी हूं और इस अध्ययन के द्वारा मैं भी बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूं. You please don't think that I am anyway a higher or elevator. I am not. We are all learning together. God is teaching me and speaking to me. तो आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं जब आप लोगों को सिखा रहा हूं तो मैं कोई उच्च श्रेणी का व्यक्ति हूं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और परमेश्वर हम सब से बातचीत कर रहा है, हम सबको सिखा रहा है. In fact, I want to thank both our Vijay and Saurabh for translating and giving us an opportunity to study Book of Acts like this as a group. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं भाइयों के द्वारा ये अवसर प्रदान हुआ कि हम लोग एक साथ मिलकर प्रेरितों के काम के पुस्तक का अध्ययन कर सकें. So I am particularly grateful to our brother Saurabh. He is doing a very good job as far as translation is concerned. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो अनुवाद किया जा रहा है. परमेश्वर उसमें हम सब की सहायता करे ताकि हम सब बेहतर रीति से इस अध्ययन को सीख सकें. Yes, we'll go further. Last week we studied up to verse 14 of first chapter, Book of Acts. और हम लोग अब अपने अध्ययन में सीधा जाएंगे और पिछले सप्ताह हम लोग 14वें वचन तक, पहले अध्याय के 14वें वचन तक अध्ययन किए थे. Today we will start from first chapter 15th verse. We'll go up to second chapter 13th verse. और आज का जो अध्ययन होगा उसका जो भाग है वो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 15वें वचन से लेकर दूसरे अध्याय के 13वें वचन तक रहेगा. Yeah, let me give you the context or the gist of what is there in this text. और ये जो भाग मैं आपको बताया इसमें क्या बताया गया है इसकी एक रूपरेखा और उसका एक संदर्भ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. In the first chapter, in the first section that we are going to study, it is about the selection of the disciple, a person in the place of Judas who got missed out.
और पहले भाग में, शुरुआती भाग में हम लोग देखेंगे एक चेले का या एक प्रेरित का चुनाव होता है, जो कि यहूदा के स्थान पे जिस प्रेरित को चुना जाना है उसके विषय में पहले भाग में बताया गया है। Yeah, we all know that Judas Iscariot was lost. He killed himself, and there was a vacancy. There were supposed to be 12 people. Now there are only 11 people. In the place of Judas Iscariot, one more person had to be chosen among the 12 people. और हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने किस प्रकार से अपने जीवन का अंत कर लिया। तो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसमें से जब यहूदा ने अपने जीवन को अंत कर लिया तो 11 चेले बचे। एक चेले की पदवी जो थी वो खाली थी और एक चेले का नियुक्त होना अभी बचा था। So that is what we will see in the first chapter 15 to 26, and then in the second chapter we will see about the Spirit of God coming down on the day of Pentecost. और पहले भाग में, प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के पहले भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से चेले की नियुक्ति हुई, और जब हम दूसरे अध्याय में जाएंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार से पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा। So those of you who are writing down, probably you can write these two major topics that we are studying. तो आप में से जितने लोग नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, आप ये दो शीर्षक को लिख सकते हैं। पहला शीर्षक रहेगा चेले की नियुक्ति और दूसरा शीर्षक जो दूसरे अध्याय में रहेगा वो है पवित्र आत्मा का उतरना। Yeah, let's read verse 15, first chapter. It says there are only 120 people gathered over there. और आइए हम पढ़ें वचन में से, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 15वें वचन में लिखा है, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। Let us read one more reference from 1 Corinthians chapter 15 verse 6. 1 Corinthians, Paul's letter to Corinthians, first letter, 15 अध्याय 6 verse 6. आइए हम लोग एक और भाग को पढ़ेंगे इसी संदर्भ में। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 6वां वचन। Please read, Saurabh. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 6वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। Yeah, it is shown here. You can read even 5, 6 also, for 5th verse and 6th verse. Yes, so you can read that. 5 और 6 को पढ़ेंगे 15 के। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। Yeah, I will also show you one more verse from Matthew 28, 20th verse. Matthew's Gospel, chapter 28, verse 18. और हम एक और आयत पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 18 वचन। 16 please, 16 sorry, yeah. Okay. मत्ती 28 उसका 16। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। So here we read there are only 11 disciples present in Matthew's Gospel 28:16, and there, yeah, you go ahead. Only 11 disciples were present in Matthew. मत्ती रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा कि यहाँ पे केवल 11 चेले उपस्थित हैं। How many disciples should be there? What were the total number of disciples? तो आपको क्या लगता है कितने चेले होने चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे, कोई बताएं? 12. Yes, thank you. There 12. But there are only 11 चेले होने चाहिए थे। There are only 11 here. लेकिन यहाँ पे केवल 11 चेले हैं। But in Corinthians we read there were 500 people who saw the Lord after resurrection. But in Acts first chapter we see there are only 120 people. फिर पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात करीब 500 लोगों ने उसे देखा। फिर प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमने पढ़ा कि जब वो कमरे में इकट्ठे थे, ऊपरी कोठरी में इकट्ठे थे, तो वहां पे केवल 120 लोग थे। See, thereby we see that number is decreasing, number is coming down. Instead of 12 there are only 11,
instead of 500, there are only 120. तो हम देखते हैं यहाँ पे जब संख्याओं को देखते हैं तो इसमें हम एक घटती को देखते हैं। 12 जहां होने चाहिए वहां 11 चेले थे। 500 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, लेकिन कमरे में 120 मात्र थे। So what we understand by this is sometimes number may be varying, but the ministry will not be stopped. So Jesus did not. Yeah. तो ये एक सिद्धांत को यहाँ पे रखता है कि कई बार जो संख्याएं हैं वो आगे पीछे होंगी, लेकिन परमेश्वर की जो सेवा है और परमेश्वर का जो कार्य है वो कभी भी प्रभावित नहीं होगा। So Jesus did not stop giving great commission in Matthew's gospel just because there were only 11 people. He gave that great commission, go to every part of the world and make disciples. That is a great commission. अब चूंकि केवल 11 ही लोग थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उस महान आदेश को देने से अपने आप को नहीं रोका, लेकिन उन 11 को उसने उस महान आदेश को दिया कि जाओ और जगत के सारे लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। Even here, even though there are only 120 people instead of 500 people, Jesus did not, or God did not stop his mission of sending the Spirit of God onto them. और प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी हम देखते हैं कि केवल 120 लोग ही हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने कार्य को उन लोगों के द्वारा होने से रोका नहीं। Yeah, what we understand here is number is never an obstacle for God. God will continue to do his ministry. We need to understand that there will be some variations in numbers. Numbers sometimes will be coming down. तो हमें जो यहाँ समझना है वो ये है कि जो संख्या है वो कभी भी परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर के कार्य के लिए रुकावट नहीं है। संख्याएं आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का जो कार्य है वो निरंतर परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करता चला जाएगा। So those of us who are in the ministry, particularly you people who are serving the Lord in the North India and missionaries, you don't be discouraged because of numbers. तो आप जैसे लोग जो सेवा में हैं और विशेषकर उत्तर भारत में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, कभी भी संख्याओं को देखकर आप अपने जीवन में हताश या निराश ना होएं। We read in the lives of some missionaries, even after working for 15 years, 20 years, there will not be any conversions or even 1 or 2 conversions. That's all. Sometimes. कई मिशनरीज के जीवन को या जीवनी को जब हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि उन्होंने कई वर्ष, करीब 15 वर्ष, 20 वर्ष की सेवकाइयों को किया, लेकिन उनके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई संख्या का लाभ उन्हें नहीं हुआ, कोई व्यक्ति वो नहीं जोड़ पाए, या हो सकता है कि बहुत कम लोगों को ही उन्होंने प्रभावित किया। We need to continue our missionary work that God has given us. लेकिन इसके पीछे जो तथ्य है वो ये है कि हमें निरंतर परमेश्वर की सेवा को जो उसने हमें दिया है करते चले जाना है। And then when there are 120 people gathered, Peter stood and he started speaking in verse 15, Acts 1st chapter. और फिर हम देखते हैं 15वें अध्याय में, पहले अध्याय के, कि जब 120 लोग एकत्रित थे तो उनके बीच में पतरस खड़ा हुआ और बोलने लगा। There are some information given to us about Judas here, how he died. Peter was explaining to them and what he did with that money, that 30 silver coins. He went and bought a land. All that story is written. He killed himself by suicidal death. All those details are given. और उसके पश्चात 16वें आयत से आगे हम देखते हैं पतरस यहूदा के मृत्यु के विषय में बताता है कि यहूदा के साथ क्या कुछ हुआ, उसने किस प्रकार से चांदी के सिक्के को लिया और उन सिक्कों से उसने एक जमीन खरीदी, एक खेत खरीदा, और उसके बाद अंततः वो हताश होकर अपने जीवन को खत्म करता है और उसकी मृत्यु खुदकुशी या आत्महत्या के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। इन सब बातों को पतरस यहाँ पे बताता है। It's very sad to learn about the death of Judas, particularly in that way. Judas was one person who was with Jesus like all other disciples for all the 3.5 years. और जब यहूदा के इस प्रकार से दयनीय मृत्यु के बारे में हम सुनते हैं तो ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि यहूदा उन 12 में से था जो यीशु के साथ रहते थे, और यहूदा ने विशेषकर उन 3.5 वर्षों को यीशु के साथ बिताया। उसके बावजूद भी इस प्रकार का उसके जीवन का अंत जो है वो दुखद है। So therefore we need to understand, sometimes such things can happen even in our ministry. Those of some people who are with us for a long time, they're serving the Lord, they're ministering, but they will not be there sometime.
तो ये एक और सच्चाई को सेवकाई से जुड़ी हुई प्रकट करता है, वो ये है कि कई लोग जो हमारे साथ होंगे, हमारे साथ आगे बढ़ेंगे या हमारे साथ सेवा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस प्रकार के एक दुखद परिणामों को वो लोग प्राप्त कर जाएं। We need to understand in the case of Judas, Judas never gave his heart to the Lord. His heart was always on money, stealing, cheating. He never had that experience of surrendering his life to the Lord. That was the problem with Judas. तो यहाँ पे जो यहूदा के जीवन के विषय में समस्या थी, उसको अगर हम समझें तो वो इस प्रकार से है कि यहूदा ने कभी भी अपने जीवन को प्रभु को नहीं दिया, उसने अपने मन को, हृदय को प्रभु के सामने समर्पित नहीं किया। वो सिर्फ पैसे का लालची था और वो धोखा देना चाहता था। उसने कभी भी परमेश्वर को महसूस करने के लिए अपने जीवन को रखा नहीं था। He was only involving at the superficial level. He never had any deep convictions. He just was there actively involving in the ministry, but never he had that born again experience or having the Lord in his heart, things like that. और उसका जो जीवन था वो केवल एक बाहरी दिखावे का जीवन था। जो कुछ भी था वो बाहरी था। उसके अंदर में, उसके मन में कभी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य की भावना नहीं आई। उसने हमेशा अपने जीवन को एक दिखावे का जीवन रखा। So that is the caution that we need to take, those of us who are in the ministry as pastors or missionaries or leaders. There will be some people like that, actively involving in the ministry, even handling finances, but they are never for the Lord. They never gave their lives for the Lord. There will be some people. Please be aware. तो आप सेवकों से मेरी ये निवेदन है कि कई बार हमारी सेवकाइयों में इस प्रकार के लोग हमारे साथ होंगे जो बाहरी रूप से या दिखावे के तौर पे बहुत ही समर्पित होकर आपके साथ काम करेंगे। हो सकता है कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को आपके लिए पूरा करें, लेकिन इस प्रकार के लोग जो वाकई में अपने मन से समर्पित नहीं हैं, उनसे बहुत सावधान रहें और उनके विषय में आप सतर्क रहें। Yes, now let us consider the process in which they have selected Matthias, or the person who will be there in the place of Judas. What was the process that apostles followed here? और अब अगले भाग में अपन चलते हैं और हम देखते हैं कि जब एक नए चेले का या प्रेरित का चुनाव होना है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई उस चेले का चुनाव करने के लिए। We'll have that from verse 21 onwards. 21 onwards, they were laying down, at least Peter was laying down some principles. What should be the qualifications of the person who should be selected? The principles are laid down in verse 21 onwards. 21वें आयत से हम आगे देखते हैं कि पतरस उन सिद्धांतों को या उन मुख्य गुणों को प्रकट करता है कि जो व्यक्ति चुना जाएगा उसके अंदर में किस प्रकार के गुण होने चाहिए। Will you please read verse 21 and 22? आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम 1 का। इसलिए जितने दिन तक प्रभु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। Yeah, at least you can keep this verse there, Vijay. Please keep it. There are at least 3 principles that they were looking for in the prospect leader. The first principle is they're saying he should be baptized, receive the baptism from the John the Baptist. That's number 1. And secondly, he must be a witness of the resurrection, and he should have been with us. He should be a witness for the resurrection, and he should be with us in the ministry. These are the 3 qualifications. The third one is he should be with us, right? Yeah, with us, and baptism of the John the Baptist, and a witness to the resurrection of Jesus Christ. इन 3 आयत में 21 और 22 में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें से जो व्यक्ति को चुना जाना है उसके चुनाव के लिए 3 मुख्य बातों को देखना जरूरी है। पहला ये है कि उस व्यक्ति का बपतिस्मा हुआ होना चाहिए। दूसरा, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह होना चाहिए। तीसरा, वो व्यक्ति उनमें का एक होना चाहिए, उनके साथ में का एक व्यक्ति होना चाहिए। Yeah. Now I would like to provide you or give you some information
on other things. There are some people who are of the opinion that Paul, who became the leader later, Apostle Paul, would be actually the 12th person. There are some people who are of that opinion. Paul is the right choice. तो कई लोग इस प्रकार से भी सोचे कि पौलुस जो बाद में एक प्रेरित नियुक्त किया गया, जब ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तो कई लोगों ने सोचा कि पौलुस शायद वो 12वां चेला या 12वां प्रेरित हो सकता है. Yeah, but some people, some Bible teachers, again they say why Paul is not that 12th, that person is because he did not have these three qualifications. He was not baptized by John the Baptist. He did not, of course, he saw Jesus on the way to Damascus, but he did not see Jesus' resurrection, and he was not with the Lord or in the ministry. He did not have that experience. For that reason, they say Paul is not the 12th person. तो कई धर्मशास्त्र के ज्ञानी इस प्रकार से बोलते हैं कि पौलुस का चुनाव 12वें व्यक्ति के रूप में इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पौलुस का जो बपतिस्मा, उसका पहला कारण यह है कि पौलुस का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मादाता द्वारा नहीं हुआ. दूसरा, पौलुस ने खुद अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को नहीं देखा. जरूर उसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और उसके स्वर्गारोहण को पौलुस ने अपनी आंखों से नहीं देखा. तीसरा जो था वो पौलुस प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं था. तो ये तीन कारण है जिस कारण से पौलुस वो 12वां चेला या 12वां प्रेरित नियुक्त नहीं किया गया. Yeah, and some people also say Matthias, only his name is mentioned here. His name is not mentioned in the rest of the book at all. We don't see about him anywhere afterwards in the book of Acts. और मत्थियास का जो नाम है, कुछ लोग इस प्रकार से भी कहते हैं कि मत्थियास का जो नाम है वो केवल प्रेरितों के काम की पुस्तक में ही आया है और इसके अलावा मत्थियास का नाम कहीं भी नहीं आया है. And again, some people will say for that argument, not only the name of Matthias is not seen in the book of Acts, but no other name except Peter, Paul, John, James, about the 12 names mentioned here, none of their names we see again in the book of Acts. Like Matthias. केवल मत्थियास का ही नहीं, लेकिन कुछ विशेष जनों का नाम अगर छोड़ दें तो बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम प्रेरितों के काम की पुस्तक में फिर दोबारा कहीं भी नहीं लिया गया है. So that is how we need to understand certain things, because there are some arguments, there are some different opinions about choosing of Matthias here. तो मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहता हूं कि जब मत्थियास का चुनाव हुआ तो उसके चुनाव से संबंधित बहुत प्रकार के तर्क वितर्क हैं और बहुत प्रकार की विचारधाराएं हैं. तो उन विचारधाराओं को मैं आपके सामने रखना चाह रहा था. Yeah, now let's come to verse 23 where it says there are two names that have come. One is Barsabas of Joseph and then Matthias. Two names came up. अब 23वें वचन में हम लोग आते हैं और वहां हम लोग पाते हैं कि दो योग्य व्यक्ति यहाँ पे खड़े होते हैं. एक का नाम है बरसबा जिसका उपनाम युस्तुस है और दूसरा व्यक्ति मत्तियाह. ये दो लोग चुने जाते हैं. And one very important thing that we learn from this process of selection is that they were praying to know the mind of God, to know the choice and the will of God. Praying church, praying people. तो एक सबसे महत्वपूर्ण और सैद्धांतिक बात जो हमें यहाँ सीखने के लिए मिलती है इस चुनाव के प्रक्रिया के दौरान वो ये है कि जब चुनाव किया जा रहा था और उन लोगों को चुना जा रहा था तो निरंतर लोग इस चीज को प्रार्थना के द्वारा किए ताकि वे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जाने. तो ये प्रार्थना करने वाली कलीसिया, ये प्रार्थना करने वाले लोग थे. That is one thing that we see. One of the characteristics of the early church, for everything, for every small or big thing, they used to depend on God, they used to look to God, and they used to go to God in prayer. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र हम आदि कलीसिया में, शुरुआत की कलीसिया में देखते हैं कि छोटी से छोटी चीज में भी और जो कुछ भी वो कलीसिया करती थी, जो कुछ भी योजनाएं वो बनाते थे, प्रत्येक बातों में वे परमेश्वर पर आश्रित होते थे, परमेश्वर पर निर्भर होकर उन चीजों को करने की कोशिश करते थे. So here they were very earnestly seeking God's help, God's wisdom and God's guidance to know the mind of God. Lord, please show us or guide us, lead us to the right decision
Lord, we depend on you. We look to you in prayer. That was the attitude, which is really a very good example for today's church. तो यहाँ पे ये जो चेले थे, ये लोग बड़े ही तत्परता से परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना को जानने की कोशिश कर रहे थे। वे निरंतर प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आप बताएं, आप दिखाएं, ताकि हम एक योग्य व्यक्ति को चुन सकें। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र कलीसियाओं का होना चाहिए। Yeah, we will see few other occasions, few other examples where church was praying on several occasions in the book of Acts. I'm going to give you few references. Brother, I could not hear you. Yeah, we are going to see now other occasions where church was praying for the guidance of God. That we will see that in the book of Acts. और हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसे और भी भागों को देखेंगे जब कलीसियाएं प्रार्थना करती है और प्रार्थना में समय बिताती हैं। This is one occasion, and the other occasion is in Acts 4th chapter. They were praying for the courage that was needed in order to witness for Christ. Acts 4th chapter 25 to 31. तो अभी हमने पढ़ा कि जब 12वें चेले का नियुक्त किया जाना था, तब चेले और कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है। उसके बाद एक और भाग जहां पे हम लोग प्रेरितों के काम उसके 4थे अध्याय के 25 से आगे में पढ़ते हैं कि फिर से ये कलीसिया या चेले मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि जब उनको गवाही देना हो तब वो साहस प्राप्त करें। तो साहस प्राप्त करने के लिए ये चेले और कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती हैं। And we see Stephen praying even as he was stoned to death. We see Stephen's prayer in Acts 7th chapter. और फिर आगे हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 7वें अध्याय में स्तिफनुस जो है, इसके पहले कि उसको पथरवाह करके मारा गया, 7वें अध्याय में हम पाते हैं स्तिफनुस प्रार्थना करता है। In 8th chapter we see Peter and John praying for Samaritans. That is Acts 8. और फिर 8वें अध्याय में हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना सामरियों के लिए प्रार्थना करते हैं। And in 9th chapter 11th verse we see Saul praying after his conversion. Saul was spending time in prayer after he got converted. Acts 9:11. और 9वें अध्याय में हम देखते हैं साउल जो कि पौलुस है, जब उसका मन परिवर्तन हुआ, जब उसने प्रभु को जाना, तो 9वें अध्याय में हम पाते हैं कि साउल भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है। And we see Peter praying before he raised Dorcas back to life. That's Acts 9:36 to 43. Peter's prayer for Dorcas. और फिर हम प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसके 32वें पद से आगे पाते हैं कि पतरस जो है वो दोरकास के लिए प्रार्थना करता है। इसके पहले कि जब वो मर गई थी, उसके जीवित होने के लिए पतरस वहां पे उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता है। In Acts 10:1 to 4 we see Cornelius praying on how to be saved. Prayer of Cornelius in 10th chapter. और 10वें अध्याय में हम देखते हैं कुरनेलियुस की प्रार्थना है, और कुरनेलियुस ये प्रार्थना करता है कि कैसे उद्धार पाया जाए। And then we are in the same chapter, 10th chapter, verse 9, we see Peter praying on the housetop as an answer. What answer should be given to Cornelius' request? Peter's prayer in 10th chapter, 9th verse. और 10वें अध्याय में फिर हम देखते हैं आगे 9वें पद में पतरस प्रार्थना करता है, और वो प्रार्थना में ये मांगता है कि कुरनेलियुस को क्या उत्तर दिया जाए। In 12th chapter, we see people gathered in John Mark's house praying for the release of Peter. That is 12th chapter, 1 to 11. और प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में हम देखते हैं चेले जो है वो पतरस की रिहाई के लिए प्रार्थना करते हैं। And in 13th chapter, we see that at Antioch, the whole church gathered in a house and they were praying before Paul and Barnabas were sent as missionaries. Acts 13, prayer at Antioch. 13वें अध्याय में हम पाते हैं अंताकिया की कलीसिया में प्रार्थना होती है, और उस प्रार्थना के द्वारा हम देखते हैं पौलुस और बरनबास को पहली मिशनरी यात्रा के लिए भेजा जाता है। And in Acts 16, 3rd verse, it was in the prayer meeting at Philippi that Lydia's heart was opened. God opened the heart of Lydia for salvation in a prayer meeting at Philippi. Acts 16:13. और Acts 13. प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके
13 वचन में हम देखते हैं फिलिपियों के प्रांत में एक घर में लुस्त्रा है जिसका जीवन बचाया जाता है, जो प्रभु को जानती है, और वो भी एक प्रार्थना सभा के दौरान होता है। And again, in the same chapter, 16th chapter, Acts 25 onwards, we see it was because of the prayers that were offered, the prison doors were opened. Acts 16:25 in the same town of Philippi. 16 के 25 आयत से आगे हम देखते हैं प्रार्थना के द्वारा जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे तो वहां के दरवाजे, जो बंदी गृह के दरवाजे हैं, प्रार्थना के द्वारा खुल जाते हैं। And in Acts 20, we see Paul praying for the elders of the church at Ephesus before he left them. Before leaving them, he was praying for them. Acts 20th chapter. 20 के 17 में हम देखते हैं पौलुस जो है वो एफेसस के प्राचीनों के लिए प्रार्थना करता है। इसके पहले कि वो एफेसस से अलविदा ले, वहां पे वो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। In Acts 27:35, during that heavy storm, Paul was praying for God's blessings. In Acts 27:35. और प्रेरितों के काम 27 के 25 से आगे हम देखते हैं पौलुस जब समुद्र में तूफान आया तो उससे बचाव के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। And after the storm is over, in Acts 28:8, Paul was praying for the healing of a sick man. After the storm, Paul praying for a sick man. Acts 28:8. और 27वें अध्याय में जब पौलुस समुद्र में जो तूफान आया उसके शांत होने के लिए प्रार्थना करता है, और जब तूफान शांत हो जाता है, फिर 28वें अध्याय में हम देखते हैं पौलुस 28 के 8 में एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है। So that is how we will see in the whole book of Acts, at every point of time, apostles, believers, leaders, they were seeking God's help, seeking God's guidance, seeking Lord's protection at every point of time in their ministry. तो पूरे प्रेरितों के काम की पुस्तक में छोटे छोटे अंतराल के अंदर में हम देखते हैं जो प्रेरित थे, जो चेले थे या विश्वासी थे, कलीसिया थी, वो हर विषयों में परमेश्वर से प्रार्थना करती है ताकि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का मार्गदर्शन उनको उनके जीवन में, उनकी सेवकाइयों में प्राप्त हो। I think God is speaking to the church today, to us, about the importance of prayer and praying together as a church. तो मैं ये जानता हूं और मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर इसके द्वारा आज कलीसियाओं को यही सिखाना चाहते हैं कि कलीसिया प्रार्थना के महत्व को सीखे और परमेश्वर से प्रार्थना करके मार्गदर्शन प्राप्त करना सीखे। And when they prayed like that together, they could see such miraculous things happening in the early church. और जब आदि कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना किया तो उन्होंने अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में अद्भुत अद्भुत कार्यों को होते हुए देखा। I know even in our context in India today, we are facing a lot of situations, lot of oppositions. Many times doors are closed, but I'm sure, I think the need of the hour is the church coming together for the purpose of prayer, praying together. और भारत के प्रतिपेक्ष में हम लोग देखते हैं बहुत प्रकार की सताएं हैं, विरोध हैं, रुकावटें हैं, लेकिन इन सब से महत्वपूर्ण, इन सब परिस्थितियों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है वो एकजुट होकर प्रार्थना करना और प्रार्थना के महत्व को समझना, ये महत्वपूर्ण है। I'm sure we can experience what the early church had experienced because of prayer if we can come together in seeking God's guidance in every matter, in everything. और मैं निश्चय जानता हूं कि आप इस बात को अनुभव करेंगे जो आदि कलीसिया ने भी अनुभव किया कि हर एक विषय में जब वो एकजुट होकर प्रार्थना किए तो उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को होते हुए पाया, और आप भी अपनी सेवकाइयों में इन आशीषों को प्राप्त करेंगे। But God properly guided them to the candidature of Matthias here in verse 26, and God has made his will known to the leaders over there when they prayed. और फिर हम अपने उस विषय में वापस आते हैं जब चेले की चुनाव की प्रक्रिया हो रही है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया, परमेश्वर ने अपनी अगुवाई को दिया, और जब पर्ची डाली गई तो परमेश्वर की इच्छा के तहत मत्तियाह का चुनाव होता है। Yeah, and one more information: this is the last time they went for voting, or they went for chits. We don't see it anywhere afterwards. This is the last time that we see in the Bible. और एक और चीज जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतिम बार था जब चेलों ने
इस प्रकार के चुनाव को किया या पर्ची डालकर किसी व्यक्ति का चुनाव किया। इसके अलावा और फिर बाइबल में इस प्रकार के चुनाव या चुनाव की प्रक्रिया के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। Sometimes, even in Old Testament, we see that there are one or two occasions. For example, in Jonah, book of Jonah, when there was a big storm and they put chits and the chit fell on Jonah. There are like that one or two occasions earlier, but not afterwards. पुराने नियम में हम इस प्रकार के कुछ घटनाओं को पाते हैं। उदाहरण के तौर पे जब योना जहाज में था और जहाज डूबने पर था, तब लोगों ने पर्ची निकाली और पर्ची योना के नाम की निकली। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं हैं, लेकिन इस घटना के बाद चेले के चुनाव के पश्चात हम इस प्रकार की घटना आगे बाइबल में नहीं पाते हैं। And before we go further, I would like to mention about what had happened to the other person, Barsabas, Joseph Barsabas, who was not chosen. Let's talk about him for a while. पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं आपके सामने उस व्यक्ति के बारे में भी बताना चाहता हूं जिसका नाम है बरसबा, जिसका उपनाम युस्तुस है। उसके साथ क्या हुआ जिसको नहीं चुना गया। Yeah, just now one brother mentioned that Jesus' clothes were also distributed. As we said, that is also before this incident, not afterwards. तो किसी भाई ने चैट बॉक्स में लिखा है कि यीशु के कपड़ों को भी पर्ची डालकर निकाला गया। आपका धन्यवाद। और वो घटना भी इस घटना के पहले हुई थी। तो इस घटना के पश्चात हम नहीं देखते हैं आगे इस प्रकार की घटना हुई है। Thank you for that input, Brother Saju Chako. Thank you. ब्रदर साजू को धन्यवाद आपके उस विचारों को रखने के लिए। So now, what had happened to Joseph Barsabas? Do you think he was discouraged because he was not selected? Do you think he left the church, or did he continue in the ministry? What could have happened? तो आपको क्या लगता है, युस्तुस बरसबा जब उसका चुनाव नहीं हुआ तो क्या वो हताश हो गया और उसने कलीसिया की सेवकाई को छोड़ दिया? Yes, I'm intentionally mentioning about it because sometimes there is some unhealthy attitude among the leadership in the church. Suppose if I am in the leadership, if I'm chosen to be an elder or a president, secretary, treasurer to be in the committee, I will continue in the ministry. If I am not there in the eldership or in the team, I will not involve in the ministry. That sort of attitude is sometimes found among leaders. तो मैं यहाँ पे एक स्वभाव को यहाँ पे प्रकट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है सेवकाइयों में कि अगर व्यक्ति को कोई पदवी मिलती है, चाहे अध्यक्ष की हो, चाहे सचिव की हो, या खजांची की, या अन्य किसी प्राचीन की अवधि अगर मिले, तो वो व्यक्ति बहुत ही उत्साहित होकर सेवा में योगदान देता है। लेकिन अगर उसको कलीसिया में किसी प्रकार की पदवी ना मिले तो व्यक्ति फिर कलीसिया की सेवकाइयों में शामिल नहीं होता है। तो इस प्रकार के स्वभाव को हम अपनी सेवकाइयों में पाते हैं। It's very important attitude in the leadership, whether you are there, whether you are chosen to be a leader, to be in the committee or an elder or not, we need to continue the ministry. We need to involve in the church in whatever way we can. That's very important. तो एक अगुवे का ये चरित्र होना चाहिए कि चाहे उसका चुनाव एक पद में हो या ना हो, या उससे विशेष अवधि मिले या ना मिले, अगर वो समर्पित है तो उसे बिना किसी पद के लालच के परमेश्वर की सेवा को करना बहुत जरूरी है। So in the first chapter ends with this very good note of apostles and leaders coming together in prayer in seeking God's will, and God has let his will known to them. And now let's move to chapter 2. तो पहले अध्याय में हम इन बातों को सीखने पाए कि परमेश्वर, हम देखते हैं कि किस प्रकार से 12वें चेले का चुनाव होता है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि इस चुनाव को प्रार्थना पूर्वक किया जाता है। आइए अब हम अगले अध्याय में बढ़ें। Yeah, so with that note, brothers and sisters, let us continue. Let us go into the ministry of the Holy Spirit of God, how the Spirit of God is leading, how the Spirit of God is leading the church for His own glory in moving forward is very important. तो यहाँ पे एक टिप्पणी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, प्रिय भाइयों बहनों। जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा आपकी कलीसिया को आगे बढ़ाता है, तो निरंतर उस सेवा में आप आगे बढ़ें, और सेवकाई में आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। Yeah, now chapter 2 verse 1 reads, it is the time of Pentecost where everybody was gathered together. Read verse 1 please.
प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके पहले वचन में पाते हैं पिंतेकुस्त का दिन है जहां पे सब लोग इकट्ठे हैं। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। Yes. So now I also will give you some introduction about these festivals of the Jewish people. There are some 3 important festivals for the Jews. तो यहाँ पे मैं यहूदियों के 3 प्रमुख त्योहारों के विषय में आपको परिचय दिलाना चाहता हूँ। The first festival is Passover. जो पहला जो त्योहार यहूदी मनाते थे वो था पासोवर का पर्व। And the second festival is the festival of first fruits, Pradama Phal, first fruits festival. और जो दूसरा त्योहार यहूदी मनाते थे वो फर्स्ट फ्रूट्स का त्योहार था, जिसका मतलब है कि प्रथम फल का त्योहार। And the third festival is Pentecost. और तीसरा जो पर्व है वो है पिंतेकुस्त का पर्व। And the meaning of the Pentecost is 50. और जो पिंतेकुस्त शब्द है उसका मतलब है 50। For our understanding, let us turn our Bibles to book of Leviticus, chapter 23, verses 15 and 16. Leviticus 23, 15, 16. और हम अपनी समझ के लिए वचन में जाएंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। 15 and 16, right brother? Yes, brother, please. लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 15 और 16 वचन। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्य बलि चढ़ाना। Also read 17 also, please. तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। Okay, thank you. So these 3 festivals are related to the Lord Jesus Christ and his ministry. That is where these festivals are important for us to understand. तो ये जो 3 पर्व मैंने आपको बताया, फसह का पर्व, प्रथम फल का पर्व और पिंतेकुस्त का पर्व, ये तीनों पर्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको समझना महत्वपूर्ण है। The Passover festival which they celebrate, Israelites used to celebrate that festival because they came out of Egypt because of that killing of the lamb, because of that blood shown in the doorposts. That is what is Passover. तो जो फसह का पर्व है वो इसराइली इसलिए मनाते थे क्योंकि जब मृत्यु मिस्र में घोषित कर दी गई थी तो उनके चौखटों पे, परमेश्वर के चौखटों पे जो लहू का छाप लगाया गया था, उस लहू के छाप के कारण से वो लोग बच गए थे। इसीलिए इसराइली उस बचाए जाने के उपलक्ष्य में उस फसह के पर्व को मनाते हैं। So it speaks about the death of the Lord Jesus Christ, how Jesus died on the cross. Because of his blood, how you and I could pass over from death to life. और ये जो लहू है ये प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का चिन्ह है, और वो हमें ये बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ तो उस मृत्यु के कारण से हम मृत्यु से जीवन की ओर प्रवेश करने पाए। Will you please read 1 Corinthians chapter 5 verse 7? Please show it on the screen also. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 7वें वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 7वां वचन। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारी भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। Yeah, the word balidan here in Pascha. Jesus shed his blood like a Passover lamb, like Pascha. तो यहाँ पे हम बलिदान शब्द को देखते हैं और हम देखते हैं कि यीशु ने अपने जीवन को यहाँ पर बलिदान किया। And then
1 Corinthians 15, 20th to 23. 15th chapter. Yes. Verse 20 to 23. और आगे हम और देखते हैं इस विषय को, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 22 and 23. Yeah, 20, 21, 22, 23. 20 से लेकर 23 तक, पहला कुरिन्थियों 15 का 20 से 23 में, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए गए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग. Yeah, here we see a word here, if you can read, the word pradama phal, first fruit. The words is very clearly written in these 2, 3 verses. और 20वें वचन में हम देखते हैं कि वो शब्द जिसको मैं जोर देना चाहता हूं वो लिखा है, और वो है पहला फल, जो कि मसीह है. Yeah, so this is speaking about the resurrection of the Lord Jesus Christ. God, Jesus Christ rose back from death to life as the first fruit. He is the first one to come back from death to life. तो ये जो पहला शब्द यहाँ पे आया है उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह वो पहले व्यक्ति हुए जो मृत्यु से जीवन में प्रवेश किए, जिनका मृत्यु से जीवन में पुनरुत्थान हुआ. तो ये पुनरुत्थित हुए पहले व्यक्ति हैं जिसके लिए ये पहला फल शब्द इस्तेमाल हुआ है. The festival of Passover is speaking about the death of Jesus Christ, and the festival of first fruit is speaking about the resurrection of the Lord Jesus Christ. तो यहाँ पे जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो फसह का पर्व है वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताता है, और जो फसह का प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में फसह का पर्व बताता है, और फिर ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में भी बताता है, जो कि पहले फल का जो पर्व है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बताता है. And now from Passover to Pentecost, which is the 50th day, here Jews celebrate the giving of the law at Mount Sinai. Mount Sinai, they were given the law through Moses, and Jews will celebrate that particular event on the Pentecost day, the 50th day. और अब हम बात करते हैं पिंतेकुस्त का, जो कि 50वें दिन का पर्व है, और इस पर्व की विशेषता है कि 50वें दिन या इस पिंतेकुस्त के दिन यहूदियों को सीनै पर्वत पर व्यवस्था दी गई थी मूसा के द्वारा. तो उस बात का आनंद मनाने के लिए और उसको एक पर्व के तौर पे मनाने के लिए यहूदी ये पिंतेकुस्त के दिन का पर्व मनाते थे. On the Pentecost day, Jews will celebrate the giving of the law. On Pentecost day, we Christians will celebrate giving of the Spirit of God. तो 50वें दिन यहूदी लोग व्यवस्था के दिए जाने का पर्व मनाते हैं, और इसी 50वें दिन हम मसीह लोग परमेश्वर के द्वारा दिए गए पवित्र आत्मा का पर्व मनाते हैं. For Jews and for those people who are in the Old Testament, law is important, law of Moses is important. But those of us who are in the New Testament, not the law. We are no more under the law of Moses, but we are under the grace, the Spirit of God. Spirit of God is important. तो जो लोग यहूदी हैं उनके लिए व्यवस्था महत्वपूर्ण है, जो लोग व्यवस्था के अधीन चलते हैं, पुराने नियम के आधार पर चलते हैं, उनके लिए व्यवस्था महत्वपूर्ण है. लेकिन हम जो नए नियम के लोग हैं, जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोगों के लिए पवित्र आत्मा का दिया जाना महत्वपूर्ण है. इसीलिए हम लोग उस आत्मा की प्राप्ति को महत्व देते हैं. So now again, Passover, death of Christ, first fruits, resurrection of Christ, Pentecost, Spirit of God. तो उन तीनों पर्व के महत्व को हम समझें. जो फसह का पर्व है वो यीशु के मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जो पहले फल का पर्व है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है, और जो पिंतेकुस्त का पर्व है वो पवित्र आत्मा के दिए जाने के विषय में बताता है. We praise God for the spiritual truth and the scriptural truth, where scripture is very nicely explained in all these matters. Thank God. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन सच्चाइयों को और इन विषयों को बड़े ही आसानी से और बड़े ही सरलता से प्रकट किया है, और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं इसके लिए.
So let's understand in the book of Acts, first chapter, first verse onwards, what were they doing? They were all gathered in the temple and they were all praying and they were all worshiping. They were all in the church. और हम आइए देखें कि दूसरे अध्याय में ये लोग जो एकत्रित हैं ये क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये उस स्थान पर इकट्ठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। I am grateful. Reverend Ram Singh and Sister Hemalata said this is a very good teaching. Praise God. We need to teach God's word. We need to understand. It's my privilege to be able to help all of us to understand the scriptural truth. Thank you. और मैं ब्रदर राम का और सिस्टर हेमलता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है और इस बात की सराहना की है कि उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है, इसके द्वारा केवल परमेश्वर को महिमा मिले ताकि हम एक दूसरे को सिखा सकें और परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी हो। I am grateful to God for the privilege. Let us continue the study. And now all the people were gathered at Jerusalem in the temple as they were instructed by God in first chapter, verse 8. और आइए हम आगे बढ़े इस अध्ययन में और हम देखते हैं कि ये सब चेले जो है वो एक स्थान पर एकत्रित हैं और जिस प्रकार से उन्हें आज्ञा मिली थी प्रेरितों के काम 1:8 के अनुसार वे लोग एक स्थान पर एकत्रित हैं। The instruction given to them was, please do not go away anywhere. Please gather at Jerusalem. Please be in the temple. Please be in prayer. That was the instruction given to them. And they were all gathered at the chair and they were all waiting for something to happen. I don't know whether they know it very clearly about the Spirit of God, but the instruction was wait. Please wait in the temple, in the church. And they did it. Disciples did it. और चेलों को ये स्पष्ट निर्देश प्रभु के द्वारा दिया गया था कि तुम यरूशलेम में ही रहना और इंतजार करना। उन्हें ये स्पष्ट निर्देश था कि उन्हें इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें प्रार्थना में रहने की आवश्यकता है। और मैं ये अपने आत्मा में महसूस करता हूं कि उन्हें जो आदेश मिला था वो ये था कि तुम ठहरे रहो, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। और ठीक उसी प्रकार से चेलों ने उस निर्देश का पालन किया और वे ठहरे रहे। Yes, brothers and sisters, sometimes we may not understand certain things, what God is doing, but what we need to do is, whatever is known to us, whatever is told to us, we need to show obedience in following those small instructions. The instruction here is, wait in Jerusalem. That's all. And they did it. And they experienced Lord great things, Lord great spiritual blessings in their lives. Please let us understand that small spiritual principle, following the word of God very sincerely. मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को हो सकता है ना समझ पाएं, परमेश्वर की इच्छा क्या है हम शायद समझ ना पाएं, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं उस परिस्थिति में उस चीज के प्रति आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं 1:8 में एक बड़ा ही अद्भुत सिद्धांत सिखाया गया है और वो सिद्धांत जो है वो बहुत ही सरल और छोटा था। चेलों को सिर्फ ये कहा गया था कि तुम इंतजार करना, और जब चेलों ने केवल उतनी सी छोटी बात का हूबहू पालन किया, जब वो इंतजार किए, तो हम आगे देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा के दान से भरा। Yeah, let us read second chapter verses 2 to verse 4. Say 2, 3, 4. हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, उसके 2 से लेकर 4 वचन। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Yeah. See, we need to understand few more details about the Spirit of God, how the Spirit of God was working among people. Here it is very clearly written. हमें परमेश्वर की आत्मा के कार्य के विषय में कुछ बातों को समझना जरूरी है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा वहां पे कार्य कर रही थी। Yeah, we see the Spirit of God in operation, or we see the ministry of God, ministry of Spirit of God, even in Old Testament. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर की जो आत्मा है वो अब काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा के कार्यों के विषय में पुराने नियम में भी पाते हैं। For example, let us read few verses. Genesis first chapter verse 1 and 2. उदाहरण के तौर पे हम लोग पढ़ें
उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके पहले 2 वचन। Please read, Saurabh, first chapter, 1 and 2 verses, old Genesis. उत्पत्ति 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। Yeah, also please read Book of Judges, chapter 6, verse 34. Book of Judges. न्यायों की पुस्तक उसका 6 का 34। 34, yeah. न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 34 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। Yeah, let's also read 1 Samuel chapter 16 verse 13 हम and पढ़े 14. प्रेरितों के काम उसका प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। 1 Samuel 16, 13 and 14, right? Yes, brother. तब सामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। Yeah. So in these verses, few verses that we have read, we read about the ministry of the Spirit of God in Old Testament. And particularly one important thing is Spirit of God used to come on some people, fill them with his power, and they used to finish some tasks, and later the Spirit of God will leave them. तो इन आयतों को जो हमने पढ़ा, 3 आयतों को, उसमें हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा जो है वो लोगों के ऊपर में आता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पुराने नियम में हम देखते हैं पवित्र आत्मा कुछ विशेष कार्यों के लिए कुछ विशेष लोगों पर उतरता था और कुछ कार्यों को करके वो आत्मा फिर वापस चला जाता था। So like on Gideon, he had to do some important tasks. The Spirit of God came and filled him, and Samuel and Samson. So like that, in Old Testament, on David. So on several occasions, Spirit of God used to come on them, fill them, and they used to have great power. And after they finish the task, Spirit of God will leave them. That's what we read, 1 Samuel 16:14. The Spirit left Saul. तो हम देखते हैं पुराने नियम में गिदोन के जीवन से, सामुएल के जीवन से, सिमसोन के जीवन से और दाऊद राजा के जीवन से भी इस बात को हम समझ पाते हैं कि जब पवित्र आत्मा इस प्रकार के लोगों के ऊपर उतरा तो ये लोग परमेश्वर की सामर्थ से भर गए और जो कार्य आत्मा को कराना था वो कार्य आत्मा इन लोगों के जीवन से कराकर वापस चले जाता है। तो पहले सामुएल की पुस्तक उसके 16 के 14 में हम यही पढ़ते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो साउल के ऊपर से फिर वापस चला गया। पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 14 वचन। Yes, but now here what we see in Book of Acts, 2nd chapter is the Spirit of God came down in order to dwell with us permanently. That's the difference. अब यहाँ पे जो नई बात और जो अलग बात हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में हम पाते हैं पवित्र आत्मा अब इनके ऊपर में उतरा, उन 120 लोगों के ऊपर में उतरा और उनके बीच में ही रहा, उनके साथ डेरा किया। So there it was temporary, here it is permanent. तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि वो थोड़े समय के लिए पवित्र आत्मा उतरता था और कार्यों को करके चला जाता था, लेकिन नए नियम में इस आयत में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो मनुष्यों के बीच में, लोगों के बीच में डेरा करने के लिए उतर आया। That is what was promised. It was already clearly told, even when Jesus was alive. Jesus taught this this doctrine or this truth. Even before Jesus was alive, he taught this truth. We will read it from John's Gospel, chapter 14, verses 16 to 17. John's Gospel, verse 14, yeah. 16, हम देखते हैं कि इसी बात की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह जब वो
अपनी सेवकाई के दौरान में निरंतर चेलों से इसी बात को बताते रहे और इस बात की प्रतिज्ञा की। और इस बात को हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 16 और 17 वचन में, मैं पिता से विनती कर प्लीज रीड। यस, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। So now here Jesus was promising the disciples that I'll go away, but I'll send you the Holy Spirit. I'll ask the Father to send the Holy Spirit so that he will be with you and in you forever, permanently. That was the promise given. तो यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे होते हैं तो उन्हें एक वायदा देते हैं कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तब पवित्र आत्मा नीचे आएगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाएगा और वो पवित्र आत्मा तुम में होगा। और इस वायदे को प्रभु यीशु मसीह चेलों को करते हैं। And very interestingly, I'm really encouraged to read this. Jesus was saying two things. I will not leave you alone. I will not leave you as orphans, but I will send Holy Spirit to be with you and in you permanently. That's first thing. और यहाँ पे बड़े ही रुचिकर रूप से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दो बातों को बोलते हैं। पहली बात ये है कि पहले प्रभु यीशु मसीह ये वायदा करते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दूंगा, पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में तुम्हें दूंगा। ये पहली बात है। So that's first thing, that I will not leave you as orphans, but instead of me, Spirit of God will be with you. That's first thing. Second thing is, he will teach you into a fuller truth. The Spirit of God will give you more wisdom, more guidance, and more enlightenment. You will understand things better with the help of the Spirit of God. तो यहाँ पे दो चीज के विषय में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। पहली चीज ये है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरे बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा और वो तुम्हारा सहायक होगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये आत्मा सत्य का आत्मा होगा जो तुम्हारे मन और मस्तिष्क को खोल देगा और इस पवित्र आत्मा के द्वारा तुम उन सारी चीजों को और बेहतर सीखने पाओगे, समझने पाओगे। तो ये तुम्हारा सहायक होगा, ये तुमको सिखाने वाला होगा। Brothers and sisters, do you see the point here? How God is concerned about us? He doesn't want to leave us alone. He doesn't want us to suffer as orphans. But my presence will be with you. I'm going to strengthen you much more. The Spirit of God, for that matter, let me explain here. When Jesus was here physically, Jesus was only at one place. For example, if he's in Judea, he's not in Samaria because he's a person physically. But whereas the Spirit of God can be there everywhere at the same time. That is the blessing of having the Spirit of God. तो प्रियो, यहाँ पे बहुत ही उत्तेजना वाली बात ये है और आनंद से भरने वाली बात ये है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारी फिक्र करता है और उसने वायदा किया है कि वो अपनी आत्मा हमारे लिए देगा और उस आत्मा को पाकर हम और अधिक मजबूत होंगे और अधिक सीखेंगे। आप अगर देखें, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दिनों में एक बार में एक ही स्थान पे उपस्थित हो सकते थे। अगर वो यहूदिया में है तो यहूदिया में है, अगर वो सामरिया में है तो वो सामरिया में थे। एक बार में वो अलग अलग जगहों में नहीं हो सकते थे। लेकिन पवित्र आत्मा दिए जाने की विशेषता यही है कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कार्य हर स्थान पर हो सकते हैं। So we need to take courage, particularly those of us who are in the church movement, in the ministry. We are never alone. See, particularly for the disciples, it is more important, more comforting because they were having those feelings. You can understand. Last week also I explained, when Jesus was leaving them, how they might have felt. Definitely they might have felt lonely. Some of them must be crying because Jesus, their loved one, was leaving. But Jesus is comforting them, said, don't worry, don't cry. I'm going to send you Holy Spirit. He will be there with you always. He will be empowering you. He will be strengthening you. So what a nice message from the Lord Jesus Christ. प्रियो, हम सबको यहाँ में बांधने की और दृढ़ होने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा का जो कार्य है, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है, वो हमें दिया गया है और वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। पिछले सप्ताह भी हम बात किए थे कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था तो चेलों के अंदर में व्याकुलताएं थी, हताशाएं थी,
बहुत कई चेले हो सकता है उस समय भावुक होकर रो भी रहे होंगे, क्योंकि जिस गुरु से, जिस मसीह से वो लोग प्रेम करते थे, वो ऊपर उठा लिया जा रहा है। ऐसी एक परिस्थिति में, हताश भरी परिस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह चेलों को वायदा करते हैं कि तुम निराश मत हो, हताश मत हो, मेरी आत्मा, परमेश्वर की जो आत्मा है वो तुम्हें दिया जाएगा और वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे अंदर से कार्य करेगा। तो वही वायदा परमेश्वर आज हमारी सेवकाइयों के लिए भी करता है, इसीलिए हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। Yes. So here in these three verses that we have read, we see three things. One is sound of the rushing wind and the tongues of fire and believers praising God in various languages. In Acts तो 2nd chapter 2 to 4. प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 2 से लेकर 4 आयत में हम 3 चीजों को देखते हैं। पहली बात है हवा या आंधी की सनसनाहट का शब्द। दूसरा है जो जीभें थी वो फटती हुई दिखाई दी। ब्रदर, कैन यू रिपीट द थर्ड वन? Believers praising God in various languages, different और languages. तीसरी जो बात है वो है कि विश्वासी अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगे। Yeah, sound of rushing wind, tongues of fire, and believers praising God in various languages. आंधी की सी सनसनाहट का शब्द, आग की सी जीभें और विश्वासी एकत्रित होकर अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। In Greek and Hebrew, the original languages, wind, the word wind and the word spirit, they both are synonymous, meaning the same meaning. यूनानी और इब्रानी भाषा में, जो कि मूल भाषा थी वचन लिखने बाइबल के लेखन का, उन दोनों भाषाओं में हम देखते हैं आत्मा के लिए और हवा के लिए एक समान शब्द का इस्तेमाल होता है। So they also saw that fire. और हम देखते हैं कि वहां पे आग भी दिखाई दिया, आग के समान भी प्रतीत हुआ। And they also heard different languages. The believers were speaking in different languages. और तीसरी बात हम देखते हैं कि जो विश्वासी वहां पे एकत्रित थे, उनके मुख से अन्य अन्य भाषाएं भी सुनी गई। So here the most important thing that we need to understand is it was the baptism of the Holy Spirit, Spirit baptized. और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने के लिए और समझने के लिए है वो ये है कि ये जो घटना हुई, ये घटना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बताता है। Let us read 1 Corinthians 12th chapter 12 to 14. 1 Corinthians chapter 12. आइए हम पढ़ें प्रेरित पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, 12th chapter 12 to 14. उसके 12 से लेकर 14 वचन। पहला कुरिन्थियों 12 से 14। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। Yeah. Now, basically, what is written here is about these three aspects. We need to understand that when they were baptized in spirit, they all became one body. That's what we read in 1 Corinthians. और पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में जो बात हम पढ़ते हैं एक देह के विषय में, उस बात को जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें जब बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त हुआ, तो ये लोग एक देह हो गए। So through this, the Spirit of God, the arrival of Spirit of God, these tongues of fire and the sound of the wind and speaking in different languages, we're speaking about, first concept is they're all one body, one church. They're all made as members of one institution, one church, one family. तो जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा, आंधी की सी सनसनाहट की शब्द हुई, आग की से जीभें दिखाई दी, अन्य अन्य भाषाओं का शब्द सुनाई दिया, तो इन सब के द्वारा जो हुआ वो ये है कि पवित्र आत्मा उनको एक देह बनाया। इसका मतलब ये है कि वो
एक कलीसिया में, एक देह में जोड़ दिए गए। And the tongues, the fire established in the fire, tongues of fire speaks about the power of the Spirit in witnessing to the whole world. Tongues of fire indicates the power of witnessing to the whole world. Please do understand carefully. तो यहाँ पे जो समझने के लिए महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो आग की सी जीभें हैं, उसका मतलब ये है कि उनको पूरे संसार में सुसमाचार सुनाने के लिए और गवाह होने के लिए सामर्थ्य दे दिया गया। And speaking in tongues is basically praising God. They're speaking to God, they're worshiping God. और अन्य अन्य भाषा बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर की स्तुति करना। जब ये अन्य भाषा बोल रहे थे तो ये परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। See, when we talk about the baptism of the Spirit, तो जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बात करते हैं, water baptism is a public event where everybody will see that we have taken baptism, water baptism. जो पानी का बपतिस्मा होता है वो सार्वजनिक लोगों के लिए होता है और लोग उसके गवाह ठहरते हैं, लोग उसको देख सकते हैं। But baptism of the Spirit is very interestingly, it is a private and personal experience. लेकिन जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है ये एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। Yeah, those people at Pentecost, they all had that experience in a public way, but we receive the Spirit personally, privately into our hearts. जो लोग उस दिन एकत्रित थे, 120 लोग, हो सकता है कि उन्होंने इसको सार्वजनिक रूप में अनुभव किया हो, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करते हैं तो इसे हम अपने हृदय में व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर पाते हैं। So the baptism of the Spirit will happen to us today as individually, as privately, as personally. Please understand this truth. तो आज के समय में पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा होगा वो व्यक्तिगत रूप से होगा और ये प्रत्येक का उसका खुद का एक व्यक्तिगत अनुभव होगा। I will repeat it again. For those people at Pentecost, all of them received this baptism, Holy Spirit of the baptism of the Holy Spirit, everybody together in a public way. But in our cases today, we all will receive baptism of the Spirit of God as individuals, privately, personally. तो एक बार फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि उन 120 लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा जब उतरा, पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा हुआ तो वो एक सार्वजनिक अनुभव था क्योंकि वो 120 के समूह में थे। लेकिन आज के समय में, वर्तमान में, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा तो ये एक व्यक्तिगत अनुभव होगा और एक व्यक्ति इसे व्यक्तिगत रूप से अपने मन में, अपने हृदय में उस बपतिस्मे को प्राप्त करके उसका अनुभव कर पाएगा। We call this as born again experience or repentance. और इसे हम नया जन्म या मन फिराव, इन शब्दों के द्वारा इन शब्दों को हम इस अनुभव को देते हैं। So actually, let me also remind all of us that it is the work of the Spirit of God to convince us about our sinfulness and need for a Savior. It is the Spirit of God who does that work in our hearts. तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ इसमें होता क्या है। ये पवित्र आत्मा का कार्य ही है जो एक व्यक्ति को उसके पापों के विषय में कायल करता है, फिर उस व्यक्ति के अंदर में एक उद्धारकर्ता के जरूरत को उत्पन्न करता है। तो ये जो कार्य है ये पवित्र आत्मा का कार्य ही है जो एक व्यक्ति के मन को उसके लिए तैयार करता है। I'll give a small example. For example, if anybody has killed somebody, did some mistake, theft, murder, or theft, all that, when they are taken to police station, these thieves and murderers and these people, they will never accept their mistake. Even when police will beat them or put them in jail or whatever it is, they will never admit the truth. They will never say the truth. मैं आपके सामने एक उम्दा उदाहरण रखना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि अगर कोई चोर है या हत्यारा है या कोई बदमाश किस्म का व्यक्ति है और उसने कोई गलत काम किया है, मान लीजिए चोरी किया है या लूटपाट किया है या किसी का खून कर दिया है, ऐसे एक व्यक्ति को जब थाने लेकर जाया जाता है और पुलिस जब उससे पूछता है तो व्यक्ति कभी भी अपने गलती को मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। चाहे पुलिस उसकी कितनी भी पिटाई करे, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति
अपनी गलती को नहीं मानेगा। But when the same person, when they come to Christ, when they come to the cross, they automatically will start confessing their sins. I did that mistake, I did this mistake. And sometimes to that extent, some people will be crying. They will be literally weeping for the mistakes that they have done. Yo, I have done this. I have killed somebody. I have theft, and I did these mistakes. Without pastor beating them or without anybody forcing them, they will start admitting and confessing their mistakes. This is the work of the Spirit of God. लेकिन जब इसी प्रकार इसी प्रवृत्ति का व्यक्ति जब प्रभु में आता है, मसीह में आता है, तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति अपने गुनाहों को कबूलना शुरू कर देता है। वो भावुक हो जाता है। कई लोग तो रोने भी लगते हैं और गिड़गिड़ा कर ये प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु मैंने ये गलती किया, मैंने चोरी की, मैंने हत्या किया। तो हम नहीं देखते हैं कि पास्टर उन्हें मारता है और उसके बाद वो लोग बोलते हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा का कार्य ही है जो उस व्यक्ति को कायल करता है और फिर वो व्यक्ति अपने गुनाहों को अंगीकार करने लगता है। So the Spirit of God will bring that conviction and that confession within ourselves, and that is called the Spirit, baptism of the Spirit. And then when we confess our sins, He will come and dwell in our hearts. That takes place individually, personally, and privately. This is the work of the Spirit of God. तो जो पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति के मन में प्रायश्चित और पश्चाताप को लेकर आता है। उसका मन कायल किया जाता है और जब एक व्यक्ति अपने मन को फिराता है, अपने गुनाहों को अंगीकार करता है, तब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है और उसके साथ रहता है। तो इस प्रकार का कार्य पवित्र आत्मा करता है और इस प्रकार के कार्य को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा हम समझ सकते हैं। And then spirit filledness. What does it mean by spirit filledness? Being filled with the Spirit. तो अगला जो विषय है वो ये है पवित्र आत्मा से भरना। ये पवित्र आत्मा से भरना क्या होता है? That spirit filledness is to do with the power to witness for God, witnessing very powerfully for God, for Christ, because of the filling of the Spirit. आत्मा से भरने का मतलब ये होता है परमेश्वर के लिए एक सामर्थी गवाह बन जाना। जब एक व्यक्ति आत्मा से भर जाता है तो वो परमेश्वर के कार्यों का एक सामर्थी गवाह बन जाता है। तो गवाह होना या एक सामर्थी रूप से गवाही देना ही आत्मा से भरना होता है। So when we are filled with the Spirit of God, we come under the authority of God and we become very close and intimate with God. जब हम आत्मा से भर जाते हैं तो हम परमेश्वर के अधीन में हो जाते हैं, आत्मा के अधीन में हो जाते हैं और हमारा और परमेश्वर का जो संबंध है वो और अधिक घनिष्ठ हो जाता है। And so we need to be regularly, constantly asking God, Lord, fill me with your Spirit, bring me under your authority. इसीलिए हमें निरंतर ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे भर दें और मैं हमेशा आपके नियंत्रण में रह सकूं। So as and when if I am more filled with the Spirit of God, I will be more under the authority and the power of God. इसका मतलब ये है कि जब आप बहुत अधिक आत्मा से भरे हुए होंगे तो आप और अधिक अपने आप को आत्मा के नियंत्रण में रखेंगे। I will be living very intimately with God. I will be receiving instructions from God. I will be obeying those instructions from God, and I'll be walking very closely with God. That is what it means to be filled with the Spirit of God. तो आत्मा से भरने का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति और अधिक परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में बढ़ता है और अधिक आत्मा के द्वारा दिए गए निर्देशों को सुनता है और अधिक आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को बिताता है। So if we see, or if you see in anyone that he is filled with the Spirit, the sign is that, the suchan is that he will be walking very closely with God. तो अगर आप इस चिन्ह को प्राप्त करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है या नहीं, तो इसका यही चिन्ह होगा। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, आत्मा की अधीनता में चल रहा है और आत्मा के दिए गए निर्देशों को अपने जीवन में पालन कर रहा है, तो वो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कहलाएगा। And it is more exercising His power, God's power in our lives. If you are filled more with the Spirit of God, you will have more
you will exercise more the power of God in your lives. When we are filled with the Spirit of God, we will exercise, we will enjoy God's power in our lives. आप निरंतर परमेश्वर के साथ अभ्यास करेंगे, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने जीवन को आगे बिताएंगे. And finally we'll speak about this speaking in tongues. और उसके बाद अंत में हम लोग इस अन्य भाषा के विषय में बात करते हैं. There is a lot of confusion about this particular topic. और ये अन्य भाषा से के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कई प्रकार की विचारधाराएं हैं. But answer is very simple. I think Spirit of God is very clarifying our doubts. There is no confusion. There is a lot of clarity here. लेकिन ये जो तर्क वितर्क का जो विषय है, इसका जो उत्तर है वो बहुत स्पष्ट है. पवित्र आत्मा ने इस your mic, Saurav, your mic is, yeah. Please repeat again. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो अन्य भाषा का जो विषय है, ये तर्क वितर्क का विषय नहीं है. इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है. पवित्र आत्मा ने इस विषय को बड़े ही स्पष्ट रूप से रखा है. I will clarify. I'll make the difference between that today what happened in speaking in tongues and today what is happening in speaking in tongues. I will show you the difference. और मैं आपको वो भिन्नता बताना चाहता हूं कि उस दिन, जिस दिन पहली बार पवित्र आत्मा उतरा था, उस दिन जब अन्य भाषा बोला गया तो क्या हुआ और आज क्या भिन्नता है. Today when you see among some of our friends speaking in tongues, nobody can understand what they are speaking. Some language they speak and nobody can understand what they are speaking. आज वर्तमान में जब अन्य भाषा बोला जाता है तो हम देखते हैं कि कोई भी उन भाषाओं को समझ नहीं सकता है कि आखिर क्या बोला जा रहा है. But whereas in Acts 2 we see the languages, the other tongues that they spoke, everybody could understand. लेकिन प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं जब चेलों ने अन्य भाषा बोला तो जितने लोग वहां पे उपस्थित थे सबको समझ में आ रहा था. At least there are some 15 people from 15 different places mentioned in Acts 2nd chapter. प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि उस स्थान पे करीब 15 अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग उपस्थित थे. Will you please read verses 9 and 10 and 11 also, 2nd chapter, Acts 2nd chapter, 9, 10, 11. दूसरा अध्याय उसके 9वें वचन से हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के लोग वहां थे. हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेन के आसपास हैं, इन सब देश के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उन्हें परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं. See, they said they are speaking in our language about the greatness of God, about the great works of God. Verse 11, last part. 11 वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि ये जो हर व्यक्ति अलग अलग प्रांत से थे, ये सब अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के द्वारा किए गए बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को सुन पा रहे थे. So that means every language that these people spoke, everybody there could understand because that was the language of that people. But today, do you know what's happening? If anybody is speaking in language, can any of us understand in which language they're speaking? We cannot. तो we don't. हम यहाँ पे देखते हैं कि जब चेलों ने अन्य अन्य भाषा को वहां पे बोला उस दिन, तो जितने लोग वहां पे थे, जितने प्रकार के, जितने भाषा बोलने वाले लोग थे, सबने अपनी अपनी भाषा में सुना कि क्या बोला जा रहा है. लेकिन आज के समय में हम देखते हैं जब अन्य भाषा बोला जाता है तो हम में से शायद ही कुछ लोग हैं जो उन भाषाओं को समझ पाते हैं कि क्या बोला जा रहा है. So they were all praising God, they were all astonished and they were all surprised, and message was very clear. They were explaining about God's works
and it was very good. There is no confusion in Acts 2nd chapter about speaking in tongues. प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि अन्य भाषा बोलने के विषय में किसी भी प्रकार का कोई तर्क वितर्क नहीं था, उनके अंदर में कोई संदेह नहीं था, सारी चीजें स्पष्ट थी। इसमें स्पष्ट लिखा है कि वे सब परमेश्वर के कार्यों के विषय में समझ पा रहे थे, और 12वें वचन में लिखा है कि वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे क्या हो रहा है। तो सारी चीजें स्पष्ट थी। Yeah, and another aspect here is one Bible teacher writes in a commentary, when they're speaking in different languages, it is about the missions, reaching out to many people with different languages and different cultures, speaking about the mission of the church. तो एक और महत्वपूर्ण बात इन अन्य भाषाओं के द्वारा हम ये सीख सकते हैं, एक धर्म वैज्ञानिक ने इस प्रकार से लिखा है कि जब अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जा रही थी, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के कार्य को अलग अलग स्थानों में किस प्रकार से लेकर जाना है, वो इस बात की सत्यता को यहाँ पे प्रकट किया जा रहा था। So now in Acts 2nd chapter itself, the mission of the church is given very clearly. You need to go to the uttermost parts of the world to people speaking in different languages, and you preach them the gospel. That is the message of Acts 2nd chapter. तो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में इस भाग का जो संदेश है और जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर के कार्य को अलग अलग जगहों में लेकर जाना है, अलग अलग भाषियों के बीच में परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करना है। यही संदेश पवित्र आत्मा इस दूसरे अध्याय में कलीसिया को और उन लोगों को दे रहा है। So all people, all languages, worldwide evangelization. That is the theme, that is the topic here. यहाँ पे जो विषय है वो ये है, सब लोग, सारे भाषा बोलने वाले, उन तक परमेश्वर के कार्यों का चर्चा संसार के कोने कोने पे किया जाना है। And finally, I'll close this study today with this biblical example or biblical illustration. और अंत में मैं आज के इस सत्र को एक बाइबल के उदाहरण के द्वारा बताकर समाप्त करना चाहूंगा। Acts 2 can be compared with Genesis 11. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय की तुलना हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11वें अध्याय से कर सकते हैं। In Genesis 11, it was the Tower of Babel, where everybody was building a big tower in order to make their name great. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वें अध्याय में हम देखते हैं, वहां पे बाबुल में लोग एकत्रित होकर एक बड़े ही मीनार को, एक बड़े ही तंबू को बनाना चाहते थे, और उस तंबू को बनाने के द्वारा वे लोग अपने नाम को महान करना चाहते थे। I'm reading, please follow Genesis 11, first verse. There was one language and one dialect all over the world. मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। Verse 4, you please read. फिर चौथे वचन में इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति 11 के 4 में, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। So they were saying, let us not scatter around, let us all be at one place, let us build a big huge tower and let us make ourselves our name big name. For their self-glory, self-pride, they wanted to have a big name and they wanted to be at one place and they were all speaking one language. That is Genesis 11, Tower of Babel. तो हम यहाँ पे देखते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि आओ हम एक स्थान पे ही रहें, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इस स्थान पे एक बड़े गुम्मट को बना लेते हैं, इस गुम्मट को बनाने के द्वारा हमारा नाम महान होगा, हमारा अभिमान बना रहेगा और हमें और किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। And what is happening in Acts 2? Not one language, many languages. Not staying in one place. Let us go together to the uttermost parts of the world. And thirdly, let us not make our name big name, but let us bring glory to God, praise to God. These three contradictions. लेकिन प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं क्या हो रहा है। तीन चीजें हो रही हैं। पहला, एक भाषा नहीं है लेकिन कई प्रकार की भाषा है। दूसरा, एक स्थान पर नहीं रहना है लेकिन संसार के कोने कोने पे जाना है। तीसरा, अपने कार्यों के विषय में नहीं
लेकिन परमेश्वर के कार्यों और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के विषय में हमें बात करना है, बताना है। So there in Genesis, it was rebellion against God, and there was a lot of confusion. And here it is in Acts 2, not rebellion against God, but it is obedience to God's authority and not confusion. There is clarity here. There is a lot of disunity. Here in Acts 2, there is a lot of unity. There God's name was put on shame. Here God's name is glorified. तो हम देखते हैं इन दोनों आयतों में, उत्पत्ति और प्रेरितों के काम में, हम उत्पत्ति में देखते हैं कि जब वहां पे जो लोग इकट्ठे हुए वे परमेश्वर से बलवा करने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन प्रेरितों के काम में हम देखते हैं जब ये लोग एकत्रित हुए तो ये परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हुए एकत्रित हुए। हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि जब उन्होंने बलवा किया तो वे तितर बितर हो गए, उनके अंदर में असमंजसता फैल गई। लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें एक कर दिया और वो एक मन हो गए। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि उनकी समझ में गड़बड़ी फैल गई, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया और उनके मन जो थे वो एक थे। So in Genesis 11, it was sin. They brought the God's judgment onto people. But here in Acts 2, it was a winning situation, and there is a blessing, and the church of God started expanding and growing, doing great things for the glory of God and for the blessing of people. Amen. उत्पत्ति 11 अध्याय में हम देखते हैं कि जब उन्होंने इस प्रकार के कार्य को किया तो परमेश्वर का दंड जो है वो उनके ऊपर में आता है। लेकिन हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखते हैं कि चेलों के जीवन में किस प्रकार से जब परमेश्वर की आत्मा उतरती है तो परमेश्वर का कार्य इनके जीवन में होता है, और फिर हम देखते हैं इस स्थान से परमेश्वर की जो सेवा है, परमेश्वर का जो कार्य है वो इनके जीवन से पूरा होता है और संसार के कोने कोने पे फैल जाता है। यही परमेश्वर के आत्मा की महिमा है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। And we are all part of Pentecost. We are going to be a blessing to the world. We are going to do greater things with the power of the Spirit of God. Praise the Lord. और आप निश्चय जाने कि हम में से प्रत्येक इस पेंतेकुस्त के दिन का एक भाग है। हम भी अपने जीवन में उस पेंतेकुस्त के उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त किए हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त किए हैं, और इस सामर्थ के द्वारा हम संसार के अलग अलग स्थानों में परमेश्वर की महिमा का बखान करने के लिए ठहराए गए हैं। इसीलिए इस सेवा के लिए हम निरंतर अपने जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद दें। थैंक यू। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद।